बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हन्नान एक नए लेक्चर सीरीज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और अभी तक जो आज का हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 3 है। चैप्टर जो है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 14, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1, एटमॉस्फेयर चल रहा है। हमने पिछली क्लास में 2 क्लासों के अंदर एटमॉस्फेयर को इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, फिर हमने लेयर्स कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक हमारा जो है वो लेयर्स में से हमने 4 लेयर्स से डिस्कस कर लिया था, उनमें से 2 हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। आज हमारी जो है वो थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो कि है मेसोस्फीयर। स्टूडेंट्स, मेसोस्फीयर, मेसो मीन्स मिडिल, meso means middle, sphere means zone या layers. We can say that easily meso, it is the third layer of atmosphere. It is the third layer of atmosphere. It is also called middle layer of atmosphere, क्योंकि हम लोग इसको middle layer of atmosphere भी कह सकते हैं। इसकी जो हाइट है स्टूडेंट, इट्स हाइट इज फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, मीन्स ये 30 किलोमीटर के दरमियान पाया जाएगा। Temperature range, we are familiar that the layers of atmosphere basically divides in different ways, but we discuss that layers where they are divided on the basis of temperatures. The temperature decrease from -5 to -93 shows the negative lapse. This temperature shows negative lapse. The decrease in temperature with height is due to low level rate of UV absorbing species like O3। यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो -5 है, जो मैक्सा टेम्परेचर हम लोग कह सकते हैं, और जो मिनिमम टेम्परेचर है हम लोग कह सकते हैं -93 है। इसका मतलब ये है, इस लेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब ये है, जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाली स्पीशीज़ है, जिसको हम लोग ओजोन वगैरह कहते हैं, ठीक है नहीं, उसकी अमाउंट यहाँ पर लेस है, ठीक है नहीं, लो लेवल पर। मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें जो पाए जाते हैं? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस रीजन आर O3 प्लस NO प्लस। फिनोमेना ऑकरिंग इन मेसोस्फीयर्स। बेटा ये जो मेसोस्फीयर है ये अर्थ को जो मेट्राइट्स वगैरह की हीटिंग से महफूज रखता है। दिस लेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय मोस्ट ऑफ मेट्राइट्स, यानी जो सियारे वगैरह नेचुरली ब्रेकडाउन की वजह से आकर ज़मीन से टकराने के खतरे होते हैं, इस लेयर की वजह से ये लेयर क्या करता है, उससे रोक लेता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो लेयर है, हमारा जो लास्ट लेयर बचता है, थर्मोस्फीयर की तरफ अभी जाएंगे। लेक्चर 3 हमारा कंटिन्यू है। अभी हमने डिस्कस किया जो लास्ट लेयर थी, थर्ड लेयर था मेसोस्फीयर, उसके बाद अभी हमने नोट किया थर्मोस्फीयर। स्टूडेंट्स, वी आर फेमिलियर दैट we already discussed in previous lectures details the layers of atmosphere each by each. First of all, we discussed tropospheres, stratosphere, mesospheres. Briefly, all parts these layers, temperature range, height, components, phenomena, all of them. But today is our most and last topic is thermosphere. So don't notice that this word, this is part is very important, because in FBIC, federal boards and KU board, given a one short question about thermosphere, they can describe the thermosphere, also discuss it's two types. This is very important topic for us. Overall, according to exams, layers of atmosphere is also important, because any one question come from these topics, it may be long or short question. If
long question, you can define the layers of atmosphere. If short question, you can define just any two types for differentiate. Student, आज का हमारा टॉपिक है thermosphere. What we are familiar with what thermo means heat. Sphere already we are discussed the previous 2 days, 2 day lectures. Sphere means areas or zones. We can say that thermosphere it is a fourth layer of atmosphere. Students, we are familiar with what is atmosphere and layers of atmosphere discussing. Height it extends to 80 kilometer to 400 or 50, 500. According to our national book on nation, 400 kilometer. If we study about the KPK book chemistry, this book mentioned it 500 kilometers. तो हमने फॉलो ही हमने अपनी बुक करना है इसमें 400 किलोमीटर. Students, according in thermosphere temperature range, the temperature increase minus 93 to 1200 in KPK book and 1800 in our national book foundations. We can say that the minimum temperature of this layer is minus 93 and maximum temperature of this layer is our national book foundation. According to our national book foundation 1800. If we talk about KPK books, and that book mentioned 1200. We can say that with increase in the heights, altitudes, and show positive lapse rate, it means the temperature increase. Major components of this layer is major components of this layer are O3 plus, NO plus, and NO plus. Phenomena occurring in the thermosphere. In this region, various gases absorb. Because we are familiar that this is topest of the atmosphere layer, which is nearly close to the sun. Thermosphere is temperature increase, the undergo ionization process. आयंस वगैरह बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. e.g. oxygen gas converted into oxygen ions. If we discuss about its types, there are two types. Sometimes examiner says that write the types of thermospheres. For 3 number questions, only short question portions included. Types of thermosphere, there are two types. Ionosphere, it is a lower layer of thermosphere. It extends to 800 to 400 kilometers in Earth's surface. Exo means outer, bahar, out one. It is outer layer of thermosphere. It extends to 400 to 1000 kilometers from the Earth's surface. स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक था वो थर्मोस्फीयर था. आज का हमारा जो टॉपिक था वो थर्मोस्फीयर था. थर्मोस्फीयर के अंदर हमने थोड़ी सी डिस्कस किया. वापस एक मतलब रिपीट कर लेते हैं. थर्मोस्फीयर क्या है बच्चों? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे थर्मोस्फीयर क्या है. ये फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है. ठीक है नहीं है. हमने एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हमने शुरू में नाम मेंशन किया था, उनमें से एक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये लेयर्स बाज़ औक़ात इधर से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बाज़ औक़ात शॉर्ट बनता है. ठीक है नहीं, इसलिए आपने तैयार करना है. थोड़ी सी थियोरेटिकल टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, तो मैंने कोशिश किया उसको ब्लू पॉइंट्स के अंदर लेकर आ जाऊँ ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी. और ये जो पेपर के हम लोग ज़्यादातर फोकस करें फॉर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट. हाँ, दूसरे बोर्ड के बच्चे भी इसको वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं. उनको भी हेल्पफुल होंगे. के बोर्ड के, बलूचिस्तान बोर्ड के, देखो ओवरऑल आपके पास पता है 9 से ऊपर जितनी भी बोर्ड्स हैं थोड़ी सी चेंजिंग आती है किताबों के अंदर. बाकी चीज़ें 90 से 80% कंसेप्ट आपके सेम होते हैं. तो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा देखते हैं हम लोग डिस्कशन. इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 या 500 किलोमीटर के दरमियान पाया जाता है. अगर हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया 400 किलोमीटर, जबकि अगर हम केबीके बुक देखेंगे तो उसमें 500 किलोमीटर. इसकी जो टेम्परेचर रेंज है बच्चों वो -93 से शुरू होगी. हमारी बुक के हिसाब से 1800 है, केपीके के हिसाब से 1200 से. ठीक है नहीं है, ये मुख्तलिफ रेंज के अंदर पाया जाता है. तो फिर हम लोग कह सकते हैं इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो -393. हाँ, कभी कभार आपसे द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्फीयर एमसीक्यूज भी आ सकता है. आप लोग माइंड ऑफ सेट्स तैयार कर लीजिएगा.
ठीक है नहीं, ये आपसे टेम्परेचर रेंज वगैरह पूछा जा सकता है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया, हाइट के साथ साथ ऊपर जाते हैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगली बात है बच्चों, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस लेयर जो है वो O3 प्लस NO प्लस O प्लस, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो गैसेस मौजूद होते हैं उन गैसेस के ऊपर सीधा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हेवी रेडिएशन अटैक कर रही है। अटैकिंग की वजह से ये आयंस वगैरह बनाते हैं। और अगला है फिनोमेना जो अक्सर इस लेयर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दिस रीजन से वेरियस गैसेस एब्सॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशंस, देयरफॉर इट्स टेंपरेचर इंक्रीज, जिसकी वजह से उसका टेंपरेचर इंक्रीज होता है। दे अंडरगो आयनाइजेशन प्रोसेस, यानी इनमें जब इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे वो आयंस में कन्वर्ट होंगे। अब इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी कभार, व्हाट डू यू नो अबाउट या ट्राइड टाइप्स ऑफ थर्मोस्फीयर। तो आप लोग लिख सकते हो इसके दो टाइप्स है, ionosphere and exosphere. I know it is the lower layer of thermosphere. It extends to 800 to 400 kilometers Earth surface से। और जो exo है, it is outer layer of thermosphere है। It extends to 400 kilometer to 1000 kilometer from the Earth surface। ये आज का था। अभी हम लोग आगे की तरफ चेक उसकी तरफ जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट की तरफ। इसी का जो सेल्फ असेसमेंट है उसको भी इसी लेक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.2। वो हमसे क्या पूछ रहा है, देखें। डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर चेंज इज वन मूव्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द अबोव एटमॉस्फेरिक एंड अंडर 50 किलोमीटर में हमने क्या करना है, टेम्परेचर के ऊपर जो चेंजिंग रूनुमा होती है वो उसकी बात करेंगे। तो बच्चों अब मैं डायरेक्ट ये सवाल का जवाब लिखने जा रहा हूँ। आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखूँगा। यानी उसने हमसे पूछा है डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर चेंज इन वन मूव्स। अगर हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इनटू द 50 किलोमीटर के अंदर मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा उसमें क्या इफेक्ट होगा, देख लें। अभी इसका आंसर लिखें। अब हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करेंगे इन द फर्स्ट जो 12 है, फर्स्ट 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे, द टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हम लोग जानते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -55 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता चला हमें? हमने ऑलरेडी पढ़ा है लेयर्स के अंदर, जो हमारा फर्स्ट लेयर था ट्रोपोस्फीयर के अंदर, उसका जो टेम्परेचर रेंज यहीं आ रहा था, कभी आ रहा था। ये जो हमारे पास है फ्रॉम, आपके पास अगर हम बात करेंगे फ्रॉम एबो, यही 12 किलोमीटर की बात होगी। फ्रॉम एबो यही 12 किलोमीटर में जो एवरेज टेम्परेचर बीइंग टू इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इज बीइंग टू इंक्रीज। वो हमें किससे पता चला? देखो, हमने शुरू के दो लेयर्स पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 12 किलोमीटर के अंदर हमारा ट्रोप होता था। उसके बाद जो 12 से 15 किलोमीटर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, स्ट्रेटोस्फीयर आ रहा था। तो देखो फर्स्ट ट्रोपो में 17 डिग्री सेंटीग्रेड से जा रहा था -55। जब हम लोग 12 किलोमीटर से, वो मीन्स हम लोग जब इंटर होते थे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ट्रोपो से, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ से कहाँ होता था ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखो, इट इंक्रीज -55 से ये इंक्रीज होना शुरू होता था, जाता था हमारे पास किसके पास, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर तो 55 है, यहाँ माइनस है। आप लोग जानते हो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो ज़ीरो से आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर रेशनल नंबर पढ़ते हैं, आप लोग रेशनल नंबर पढ़ते हो, ये आपका ज़ीरो है। अब आप लोग प्लस वाले जितने अवे जाएंगे इतनी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। प्लस जितना ज़ीरो से दूर होगा इतनी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 55 था, आपने इसको
कम लिखा, और जबकि ये 5 वाला आपने बड़ा लिखा। बच्चों माइनस वाली वैल्यू जो होती है, आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर रेशनल नंबर पढ़ते हो, माइनस वाली वैल्यू 0 से जितनी अवे होगी वो इतनी समालर होगी, ठीक है नहीं है। तो इसलिए हमारा पास जो -55 इज समालर देन -5, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं, ये जो -55 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारे पास समालर है देन किससे, -5। इस पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। एक मतलब दोबारा सुन लीजिएगा, आप रेशनल नंबर पढ़ते देखो, प्लस वाली वैल्यू जितना अवे 0 जाएगी इतनी ग्रेटर होगी प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू जितना 0 से अवे जाएगी इतनी समालर होगी, जितने वो 0 के करीब होगी वो ग्रेटर होगी। देखो उसने सवाल हमसे क्या पूछा था, वापस इसको डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर चेंज एज वन मूव्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर। देखो आपने उसने हमें ये बताया है 50 किलोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर है उसका क्या रेंज है हमें बताना है, कितना आप लोग मूव करें। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं 50 किलोमीटर के अंदर हमारे 2 लेयर्स आते हैं, ट्रोपो और स्ट्रेटो। अब जब हमने ट्रोपो में हमने मूव किया था, हमने कहा उसका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिनिमम -55 है। ये जो अगर हम लोग उससे आगे जब ही ट्रोपो ख़त्म होता है उससे ऊपर जाते हैं हम लोग स्ट्रेटो में दाखिल होते हैं, तो हमारा स्ट्रेटो का टेम्परेचर क्या होता था, वो इंक्रीज़ होना शुरू होता था। उसकी जो रेंज थी, मिनिमम जो रेंज थी -55 थी, मैक्सिमम जो रेंज थी -5 थी। इसका मतलब ये हो गया, हम लोग कह सकते हैं जो फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी डिक्रीज़ हो रहा है, और सेकंड में इंक्रीज़ हो रहा है। तो आज के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। आज हमारा लेक्चर 3 का एंड हो गया है। तो एक की चीज़ आपसे एक सजेशन ले लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये जो बोर्ड मेंटेनेंस पहले कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड में लिखते हुए मेंटेन करते हुए आपको समझाता जाऊँ तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है। अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये लिखते हुए वीडियो बने तो उसी हिसाब से कमेंट्स दे दें। नहीं, यही जो फॉर्मेट में फॉलो कर रहा हूँ, पहले बोर्ड मेंटेन करके फिर समझा रहा हूँ, उससे आपको एक अच्छे नोट्स देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग कह रहे हो नहीं सर, अगर आप लिखते हुए पढ़ाएं हमें कि तो वही उसी सजेशन की तरफ जाएंगे, नहीं यही जो फॉर्मेट अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसी पे यही ही बेहतर है। तो हम टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी भी टाइम, क्योंकि आगे एग्ज़ाम करीब है, आपके पास भी इतना लंबा टाइम नहीं होता कि लंबी लंबी वीडियोस देखते रहें। तो इसलिए हमने कोशिश की है पहले नोट्स को फॉर्मेट दिया जाए, फिर क्या किया जाए उसको समझाया जाए। तो इस हवाले से आपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और फेसबुक पेज हनान एकेडमी और यूट्यूब चैनल हनान एकेडमी को फॉलो और सब्सक्राइबर ज़रूर करना, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।